Good evening, everyone. Hello. I hope all of you are doing really well. After having three great sessions on different subjects, which are challenges for an Indian actor, needs of new Indian cinema, and how to write and what to write, we have reached to the fourth day of our webinar with another amazing subject. Before going further, I would like to share a few things with our participants who have joined us today. Summer Theatre Group is a Delhi-based drama school. Here at Summer, we believe in holistic development of actors is must. Hence, the training should be multidimensional, and therefore we are here with the season one of our webinar, having eminent personalities who will talk on diverse topics. We organize such events throughout the year, like workshops on different acting techniques, seminar, talks, special workshops, etc. To get updates of such events, do follow our Instagram handle and like our Facebook page. The links have been dropped in the chat box. So, today, I, Ankit Kumar, on behalf of Summer Theatre Group, welcome you all on the day 4 of our webinar. Now, I would like to welcome and introduce our speaker of the day, Choiti Ghosh. Choiti Ghosh is an object theatre practitioner, puppeteer, actor, singer, writer, and director. She started her professional career in theatre with her home company, Anand, who specialized in children's theatre as a performer, facilitator, and manager. She has also worked in the field of alternative education with the well-known educationist Professor, Professor A.K. Jalaluddin. In 2004, she was initiated into puppetry with Anurupa Roy's Kat Katha Puppet Arts Trust. She continues to be part of the group as a puppeteer, writer, and singer. In 2010, she trained in object theatre under the well-known Belgian object theatre artist Agnes Limbos in France. In 2001, she started Tramp Theatre with a vision to specialize in object theatre in India. She has been a research in residence at a prestigious theatre and puppetry institute in Bochum, Germany in 2012. She was a part of British Council Indian delegation to the Edinburgh Fringe Showcase, the UK, in 2012. She was a recipient of Sahitya Rangbhumi Vinod Doshi Fellowship for Outstanding Young Artists for the year 2011. She is also a TEDx speaker. In 2016, she received the Sangeet Natak Academy's Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar for puppetry. We welcome you, ma'am, in the first season of our webinar. Before ma'am start with her talk, I would like to request all of you to follow some instructions. First, please keep your mic muted during the presentation. I would like to request you to keep your cameras on and make sure you are sitting in an appropriate frame. You can ask your questions by typing it in the chat box, but try to avoid it during the presentation as we will have a Q&A session at the end. As we are in great numbers, so in order to avoid chaos, those questions will be consolidated and asked by me. But at the end, if you feel that your question haven't been answered or asked by me, then you have an option of raising hand in the application. Do click it. Last, but the most important one, we all are connected to a digital medium whose controls are beyond us. So in case of any technical or network error, do keep a check on your WhatsApp group. Now, with a big round of applause, I would like to request our speaker, Jyoti ma'am, to take the digital stage. मैम प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए. Ma'am, you are. Yeah. Now, can you hear me? Yeah. Thank you. तो जैसा कि अंकित ने कहा, अगर आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, लेकिन चाहे तो कैमरा ऑन रख सकते हैं, बिकॉज आई एम होपिंग दैट दिस विल बी एन इंटरैक्टिव सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, और मैं ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ बोलती चली जाऊं और आप लोग सिर्फ सुनते चले जाएं. कोशिश करेंगे थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने की, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं ऑब्जेक्ट थिएटर करती हूँ, और ऑब्जेक्ट थिएटर मतलब जैसा एज द नेम सजेस्ट, वो थिएटर है जो ऑब्जेक्ट्स के साथ कहानियां कहता है. और ऑब्जेक्ट मतलब क्या, अपने आसपास अगर आप लोग गर्दन घुमा के देख लें, कमरे में जो सारी चीजें हैं, उन्हीं रोजमर्रा की चीजों से हम कहानियां कहते हैं. तो जब मैं ऑब्जेक्ट थिएटर कहती हूँ लोगों को कि नमस्ते, मेरा नाम चोइती है, मैं ऑब्जेक्ट थिएटर आर्टिस्ट हूँ,
तो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन मेरे को हमेशा मिलता है जो कि हैं ये क्या करती हैं आप, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट थिएटर आर्टिस्ट मतलब ये क्या होता है। आई थिंक आप लोग बहुत ज्यादा पोलाइट है इसलिए आप लोगों ने ये रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन ये बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है, लेकिन इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है ही इतना नया आर्ट फॉर्म। मतलब 1979 और 1980 के बीच में ये आर्ट फॉर्म पैदा हुआ, ऑफिशियली इसका नाम पड़ा। अब मैं ऑफिशियली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई भी आर्ट फॉर्म तो अचानक से पैदा नहीं हो जाता, उसका भी एक हिस्ट्री होता है, एक एवोल्यूशन होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, कहाँ से आया, क्यों पैदा हो गया। इसकी एक पिछले शताब्दी से ही शुरू हो गई थी, जब ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अगर आप अपने कमरे में थोड़ा सा देख लीजिए, तो थोड़ा सा मुड़ के देख लीजिए आप लोगों के कमरे में आपको अभी क्या क्या दिख रहा है। सोफा, टेबल, चेयर, बोतल, गिलास, डस्टबिन, बहुत कुछ दिख रहा होगा। ये सारी चीजों से लोगों ने ये सारी चीजों को आर्ट में लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना एक सेंचुरी पहले से ही शुरू कर दिया था। आपको डांस में बहुत दिखेगा, विजुअल आर्ट या पेंटिंग में बहुत दिखेगा, थिएटर में भी शुरू हो चुका था। अब सबसे ज्यादा हुआ था पपेट्री में, पपेट थिएटर में। अब पपेट्री की जर्नी ऐसी रही है कि अगर मैं बोलती हूँ आपको पपेट मतलब कठपुतली, कठपुतली के नाम से ही जानते हैं ना हम लोग, तो आप लोगों के दिमाग में क्या छवि आती है? आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, जिसके भी दिमाग में जो पिक्चर आता है आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैं कहती हूँ पपेट। राजस्थान राजस्थान के लोग जैसे पपेट ज्यादा यूज करते थे आई थिंक। हाँ, वो दिखता कैसा है? हाँ, वो उंगली में फंसा के उसमें धागे होते हैं, वो पपेट जैसे डॉल का बना सकते हैं या फिर कोई वुडन का होता है, तो ऐसे करके जहाँ तक देखा। हाँ, ज्यादातर सबके दिमाग में एक डॉल की ही छवि आई होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और पपेट ट्रेडिशनली वही हुआ करता था। फिर अचानक धीरे धीरे क्या होने लग गया कि लोगों को लगा कि ये जो पपेट है इसको हम अपने आकार में बनाते हैं, मतलब मनुष्य के रूप में बनाते हैं, और फिर जब उसको चलाते हैं लोग मान लेते हैं कि वो जिंदा है। अगर कोई ऐसी चीज जो मनुष्य के आकार में नहीं बनी हुई है, जो हमारे जैसी नहीं दिखती है, और अगर हम उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं, तो क्या दर्शक मान लेती है कि वो जिंदा है? और इस तरह से लोगों ने जूते, चप्पल, ग्लास, मोबाइल फोन, पेपर, इन सब में थोड़ी थोड़ी जान डालनी शुरू कर दी ऑन स्टेज। और ये पाया गया, ये देखा गया कि ऑडियंस को ये मान लेने में कोई तकलीफ नहीं होती कि ये चीज जिंदा है। ये पेपर भी ये चल सकता है, इधर उधर देख सकता है। ये इमोशंस कम्युनिकेट कर सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स की एंट्री हो चुकी थी स्टेज में। फिर 1979-80 में क्या हुआ कि आर्टिस्ट ने फिर ये सोचा कि चलो ये तो हमको पता लग गया कि डेड चीजों को जिंदा करना हमारे लिए अब चैलेंजिंग बात नहीं है। अगर हम सोचो जिंदा ही ना करें उसको, सपोज वी डोंट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू लाइफ, ऑब्जेक्ट जो है जैसा है, क्या वो कोई आइडिया कम्युनिकेट कर सकता है, कोई स्टोरी कह सकता है, हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न कर सकता है? और इस खोज की शुरुआत से ऑब्जेक्ट थिएटर की शुरुआत हुई। ना हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के टाइम यूरोप में सब कुछ खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। मतलब बिल्डिंगें तो बहुत दूर की बात है, खाने को नहीं था लोगों के पास।
और उसके बहुत कम टाइम के बाद आया कंज्यूमर एज। कंज्यूमर एज मतलब जब बहुत सारी चीजें बहुत मास मैन्युफैक्चर होने लग गई, एवरीथिंग, ये मोबाइल फोन के 1 मिलियन कॉपीज आपके सुपरमार्केट्स में भरे हुए हैं। ये कप के बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाली 1 करोड़ कप अब सबके घर में है। तो एकदम स्केर्सिटी जब कुछ नहीं है और उसके बहुत कम टाइम के बीच में अचानक सरप्लस बहुत कुछ है, और इस स्पेक्ट्रम में ऑब्जेक्ट थिएटर का जन्म हुआ। अब ये कैसे करता है, ये कैसे ये रोजमर्रा की चीजों को लेके अपनी कहानी कहता है, आइडियाज कैसे क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में। देखिए, पपेट्री से एक फर्क ये है कि पपेट्री डेड चीजों को जिंदा करती है। मैं इस मोबाइल फोन को एक वॉक दे सकती हूँ, आई कैन गिव इट अ वॉक। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैन यू गाइस सी? Yes, ma'am. It can walk, it can वाह, इतने सारे लोग मैंने तो पहले कभी नहीं देखे, हमेशा इसी के साथ चिपकी रहती हूँ। अरे आप लोगों को तो देख के बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आ रहा है। अरे इसको बोलिए ना कि मुझे थोड़ा अपने से दूर करे, मुझे आप लोगों से मिलने दे। हैं, स्माइल कर रहे हो ना सब लोग? मान लिया ना कि ये जिंदा है, लेकिन आपको पता है कि ये डेड है। आपको पता है कि ये मोबाइल फोन है, ये प्लास्टिक मेटल कुछ फालतू चीजों से बना हुआ है, लेकिन ह्यूमन माइंड इतना कमाल का है कि ये एक टाइम पे 2 लेवल पे काम कर सकता है। आपका माइंड ये मान सकता है कि ये क्या? जिंदा है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई कंटिन्यू। सो जबकि आपको पता है कि ये डेड है, फिर भी आप मान सकते हैं कि ये जिंदा है, आपसे बात कर रहा है। ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है ना, वो पपेट्री और ऑब्जेक्ट थिएटर में बहुत बहुत हाइटन लेवल पे काम करता है। अब ऑब्जेक्ट थिएटर क्या करता है? ऑब्जेक्ट थिएटर इस मोबाइल फोन को जिंदा नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट थिएटर ये कहता है इसको कम्युनिकेट करने के लिए अपना वजूद खोने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ और बन जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में जो है काफी है, फिर भी कुछ कह सकता है। ये काम करते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं बोलती चली जाऊंगी फिर उतना अच्छे से मैं कम्युनिकेट। अगर मैं आप लोगों को एक गेम खेलने को कहूँ, आप लोग खेलेंगे? खेलना चाहेंगे मेरे साथ? ओके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं है, आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। कोई एक ऐसी ऐसी चीज उठानी है, कोई और एक ऑब्जेक्ट उठाना है जो अगर आप ऑब्जेक्ट होते तो आप वो होते। सो कैन यू सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट जो आपको लगता है कमरे में जितनी चीजें हैं उस सबसे सबसे करीब आपके है एज अ पर्सनैलिटी, and just show it to the camera. Just bring it close and show it to the camera. And hold it, hold it. Nice. Oh, I see a giraffe, a water bottle. Oh my, ये ध्रुवी के हाथ में क्या है? रस्सी है कि जड़ें हैं? ये क्या है? वायर्स हैं? And these are fairy lights, blue fairy lights. फेरी लाइट्स, ओके। किसी के हाथ में एक बोतल, बोतल है कि कप है? फाजिल, बोतल, ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। मेघ के हाथ में मास्क।
वेरी इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। गीतिका थोड़ा पास लेके आएंगे उसको, जो भी है आपके हाथ में, जस्ट ब्रिंग इट टू द कैमरा, वी कांट सी इट वेरी क्लियरली। ये विक्स वेपर है। Okay, very interesting. Okay, let's stay with गीतिका for now. गीतिका, आपको कुछ नहीं करना। जो एडमिन है, क्या वो गीतिका को स्पॉटलाइट कर सकते हैं? ये गेम जो है, गीतिका, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना ऑब्जेक्ट दिखाना है, ठीक है? बाकी हम लोग जो हैं, हम लोग गेस करेंगे कि गीतिका विक्स वेपर अब क्यों है। Why has she chosen this object for herself? लेकिन गीतिका, हम जो भी बोलेंगे, तुम कुछ भी चीज को मना नहीं कर सकती हो। हम जो भी बोलेंगे तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है? So can has Geetika been? Yeah. So Geetika, just hold the Vicks Vapor up very close to the camera ताकि हमको बहुत clearly दिखता रहे. Okay. Yeah. अब बाकी दर्शक जो हैं, हम लोग जो हैं, प्लेयर्स जो हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक्चुअली एक एक करके हाथ उठाइए एंड देन एडमिन आपको अनम्यूट करेगा, जो भी आपके दिमाग में आता है कि गीतिका विक्स वेपर अब क्यों है। या ध्रुवी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मैम, ये इतनी छोटी सी प्यारी सी है, शायद इसीलिए एकदम उसकी डिब्बी की तरह। ओके, ऑलराइट, एनीवन एल्स? Don't be shy. Ma'am, may I? देखिए, of course you may. शायद वो दूसरों को heal करती है. So it could be. So I don't know her, but since the object she chosen is very interesting, so I suppose her personality is interesting. कि चुभती हूँ पर काम जरूर आती हूँ types. चुपती हूँ पर काम जरूर आती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। और आई थिंक कोई और भी कुछ बोल रहा था। कोई Ma'am, I feel she thinks that her personality is soothing enough. Soothing. Yes. Very interesting. Okay. Suraj, do you want to say? हो सकता है वो दूसरों के दुख दर्द दूर करना चाहती है उससे। शुभम? मैम, वो बाहर जितनी डब्बी से हार्ड है, शायद वो अंदर से उतनी मुलायम है। I think she is a person who feels that people around her generally feel nice. So it like Vicks we usually use when we having difficulty in breathing. So she might have chosen because people around her breathes better when she's around. So that's what I felt. Okay. Any other thoughts? Any other thoughts? I think because वो हमेशा बीमार लोगों के पास ही रहती है for some reason. Okay, let's try it with one more person. I'm going to gallery view. आप गीतिका का spotlight खत्म कर सकते हैं. Please hold up your objects. Let's try it one more time. Ooh, love it. I love these objects. संदीप रावत जी, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? Let's go with ध्रुवी. एक बार संदीप का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद let's go with ध्रुवी. ये क्या है संदीप? सैनिटाइजर है? Sanitizer. Really? आजकल कौन सैनिटाइजर नहीं है? Let's go with ध्रुवी. उसका ऑब्जेक्ट बहुत जटिल है. Can we spotlight ध्रुवी? Interesting. Dhruvi, can you hold up your object?
एंड उसको पास लेके आओ. कैन यू शो इट टू अस ऑल अराउंड वेरी केयरफुली? ओके, एनी थॉट्स? ध्रुवी जो है ये क्यों है? Ma'am, she is difficult Maybe to she solve. One by one, Yeah. one by one. Yeah, please say. हाँ, She आस्था is बोलो. difficult to solve. She is difficult to solve, Twinkle. Okay. और He's फिर multi-purpose. multi-purpose. Okay. आस्था? She lights up the world of the person. She is very electrifying. She's electrifying. या फरहान? या फरहान? I think she don't know what to do in her life, so that's why she's. Am I audible to you, ma'am? Yeah, you're audible. Hello. Yes, you're audible. I'm saying I think she's so much confused with her life, so she don't know what to do. That's why she's entangled with all these things. Interesting. Very interesting. Yes, Raghav? She has a bright personality, just like the lights. Mm-hmm. Okay. या महक? मैम मे बी उसको बहुत एफर्ट्स चाहिए, मतलब दूसरे इंसान से she wants lot of efforts to be put in while having a conversation so that the conversation becomes fruitful. तो उसको untangle करो उसके वायर को पहले, फिर you can have the पूरा रस उसकी बातों से. या स्मृति? Ma'am, I think she has infinite potential. Right now, what she seems to be, she can be entirely different from that if efforts are put in. So that's what. Bharat? Yeah, I think she is very helping person. तो ये वायर है काफी काम आ सकती है. So I think she is very helping. That's why. मैं भी यही सोच रही थी that ये सिर्फ एक काम नहीं आती. ये मतलब लाइट भी does it work? ध्रुवी, ये लाइट काम करती है? चलो थैंक गॉड. तो अगर काम नहीं भी कर रही होती तो फिर भी you can tie with it. उसमें कपड़े टांग सकते हो, किसी को बांध सकते हो. अश्विनी? जलेबी की तरह सीधी, राउंड राउंड. जलेबी की तरह सीधी. हाँ. शुभम? Ma'am, there's always one person in the group who binds people, so she's a rassi in her life. तो लोगों को जोड़ के रखने का. Very interesting. Very interesting. Raghav, you want to share? Your hand is up. I'll give it. Okay. Mehak, your hand is up. Yeah, you for want the to share? previous time. What? Oh, okay. And Divya has shared a lot of things are going on in her head. That's why she's tangled. So interesting, yeah. So interesting. Okay, you want to do me? So can we remove Dhruvi's spotlight? Okay, now do me. I'm not going to ask you to speak. Somebody else be the admin. Okay, somebody else. Arun, आप सबको बोलेंगे to speak turn by turn. Yeah, you'll take over my job. हाँ जी. Okay. मैं जैसे ask for So, unmute करूँगा, you अगर will get a notification and then unmute your mic and then speak please. Okay. So if अगर मैं object होती तो मैं A thing which can be used everywhere, like everywhere in every single thing. Never useless. मैम आप सबके साथ घुल मिल जाते हो क्योंकि शायद आलू की सब्जी सबके साथ बन जाती है, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा मिलनसार हो. मैम आप सबकी फेवरेट हो. अच्छी बातें बोलने की जरूरत नहीं. ओके. नहीं, आलू सबका फेवरेट है. मैम
वो तो टेस्टी खाने में, बट अगर ज्यादा खा लिया जाए तो आलू की तरह ही हो जाते हैं। मैम मुझे लगता है आप काफी ग्राउंड टू अर्थ हो, क्योंकि एक वेजिटेबल है तो वेजिटेबल हमारी धरती से जुड़ी हुई होती है, तो आई थिंक यू आर वेरी ग्राउंड टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन। आप बहुत versatile हो, because like aloo can be like used in a very very different ways. I'm body positive. I would like, okay. So we have to mix the objects. Actually, I thought you are very energetic because aloo is a good source of carbohydrate. Oh. मैम No, शायद आप it's- पतली होना चाहते हो। Sorry, शायद आप पतली होना चाहते हो। क्या होना चाहती हो? I can't hear it. She's saying पतली होना चाहती हो। हाँ यार, ये तो है। I think Okay, you are a I'm just person who, sorry to interrupt. You were saying something? No, not at all. No, not at all. You are a Say. person who's perceived differently to what you are inside. Because like potato की तरह बाहर से गंदा दिखता है, मिट्टी लगी होती है, छूने में गंदा है, पर अंदर से एक्चुअली में उसके बहुत फायदे हैं। So हाँ, different from outside, very different from inside. I'm just showing you different aspects of the potato. मैम, ताकि आप लोग और आपको अपने को शेयर करने के लिए, मतलब कि क्योंकि आलू की जो बर्ड होती है उसी से दूसरा आलू जनरेट हो सकता है, तो यू डोंट नीड anyone else for that. You can spread yourself or the knowledge you have accumulated, वो अपने थ्रू ही कर सकते हो। Very interesting. हर जगह मैम देख सकते हो कि आलू की बहुत सारी आंखें होती हैं, तो हर जगह नजर रख सकते हो आलू के, तो आलू बन के। बच के रहना बेटा। I think you are aloo, because aloo is always be an option. कुछ नहीं तो आलू हो ही जाता, तो maybe you are always in that option for some people. Ma'am, maybe you have sharp eyes. Maybe I have sharp eyes. Thank you. Okay, interesting. Let me just show you. Thank you. ठीक है. Let me just show you some other aspects. हाँ जी. उपाध्याय तीसरी बार लाइक है। नहीं, वो करते हैं रेगुलर, मेरे ही करते हैं। आपके करते हैं, हमारे तो आज तक ही नहीं। I'm sorry, what is this conversation? Okay. Someone's mic was on. Yeah. Okay. So now. Hello. So now. Yeah. कोई बोल रहा है क्या? जी Somebody मैम, wants to share something? हाँ. ये आवाज आ रही है? हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए ना। अगर हम अपना जरा सा मतलब आलू के तौर पर अपने आप को जरा सा मतलब कि पॉलिश कर ले, तो हम काफी महंगे हो सकते हैं। लाइक आलू से चिप्स का बन जाना। Yeah. Interesting. Very interesting. Okay. Now, मैंने आप लोगों को ट्रिगर ये दिया है कि मैं ये आलू हूँ। Now, धीरे धीरे मेरी कहानी पता लग रही है आपको। A play is unfolding.
What happened to me? मेरे साथ क्या हुआ? मैम आपने Whatever अपनी thought. बुराइयों को हटा दिया। Okay. मैम आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो विद द हेल्प विद एन आउटसाइड हेल्प। Okay. Interesting. आप You were मैम very आलू raw. से चिप्स बनने के प्रोसेस में आ गए। You are आप letting your बहुत guard रॉ down. थी एंड यू नीडेड समवन जो आपको नाइफ की तरह एक्चुअली में नरिश करे या एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाए ताकि यू कुड बी यूजफुल। Ma'am, maybe you shed some of your layers, like all the layers we keep in front of people, maybe. From ambiguity to certainty. From ambiguity to certainty. Can you please say again? I said from ambiguity to certainty. From ambiguity to certainty. Okay. Interesting. And man, maybe using the actual hard path to shine yourself better. Very interesting. So your real Very, personality. very interesting. मैं एक चीज एक मिनट, आपसे पहले कोई बोल रहे थे, वो बोल ले, फिर आप बोलिएगा। You encountered with a good teacher who removed your inhibitions. Very interesting. हाँ, प्लीज से। मैम जैसे हर एक चीज का एक कवर होता है, तो आलू का वो कवर था, तो फाइनली वो अब कवर रिमूव हो चुका है, तो आलू अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा होगा। मे बी इस तरह भी सोचा जा सकता है ना। ऑफ कोर्स। Ready to be processed. मैम जैसे मैंने पहले कहा था, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है, बट नाउ इट इज हर्टिंग उसका सेल्फ को, क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन दैट पर्सन और आलू लीविंग द सेल्फ व्हिच इज नॉट राइट। Day by day people are using you, and जैसे जैसे आलू चलते जा रहा है वैसे वैसे they are using you and dumping you, using you and dumping you, and at the end your soul is getting burst. अब पोटैटो को जानबूझकर प्रोवोक कर रहे हैं। You are losing your so bits. many possibilities, no? Yeah, so many possibilities, no? These are all possible. This is what object theater does. Object theater में आलू को कुछ और बन जाने की जरूरत नहीं है, उसको चलने की जरूरत नहीं है, जिंदा होने की जरूरत नहीं है, उसको सांस लेके बात करने की जरूरत नहीं है, उसको खुद रोने की जरूरत भी नहीं है। हमने आलू के साथ वही किया जो हम आलू के साथ करते हैं, हमने उसको छीला, उसको काटा। लेकिन मैंने शुरू में आप लोगों को एक ट्रिगर दे दिया था। वो ट्रिगर था कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट होते तो आप क्या होते। तो अब वो ट्रिगर इस तरह से काम किया कि उस ऑब्जेक्ट में आप अपने आप को देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ जो हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। बट ऑब्जेक्ट ने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट बोल नहीं सकता। ऑब्जेक्ट वही कर सकता है जिसके लिए वो बना है। ये ह्यूमन माइंड है, ऑडियंस की माइंड है, जो उस ऑब्जेक्ट के रोजमर्रा की जो फंक्शंस हैं उसमें अपना मीनिंग ढूंढ लेते हैं। एंड दिस रियली इज द फाउंडेशन ऑफ ऑब्जेक्ट थिएटर। ऑब्जेक्ट थिएटर का फाउंडेशन यही है। अब ऐसी अजीबोगरीब थिएटर क्यों करते हैं लोग? स्टेज पे उठा के आलू छील दिए जी, स्टेज पे कुछ गुड्डे गुड़ियों को लेके खेल लिए, एक पॉलीथीन उड़ा दी। ये सब क्यों कर रहे हैं लोग? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो सोच होगी इसके पीछे। इतना to this very strange kind of theater. Strange तो है because it is very new. The thing is कि जब मार्केट में, जब मैंने कहा ना कि कंज्यूमर एज आया था, कि बहुत सारी चीजें मार्केट में भरने लग गई, वो सारी चीजें, मुझे एक बात बताइए, ये क्या है? आप लोगों को पता है? किसको नहीं पता ये क्या है?
ऐसा कोई है जिसको नहीं पता ये क्या है? ऐसा कोई है जिसके घर में ये नहीं है? यही तो ऑब्जेक्ट्स की खासियत है कि वो सबका है, यूनिवर्सल है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता ये क्या है। सबके घरों में पाया जाता है, सबके किचन्स में पाया जाता है, इतना ही मामूली है। तो ख्याल ये आया कि जो ये इतनी मामूली चीज है, क्या ये इतनी ही मामूली है कि इसमें कुछ भी खासियत नहीं है? ये इतनी मामूली है कि इसके पास कहने को कुछ नहीं है, इसके पास कोई कहानी नहीं है? क्या ये थिएटर के लायक नहीं है, अपनी कहानी सुनाने के लायक नहीं है? क्या कोई भी चीज इतनी मामूली हो जाती है कि उसके पास कहानी कहने का हक नहीं है? इस थॉट को चैलेंज करते हुए ऑब्जेक्ट थिएटर की शुरुआत हुई थी कि अपनी कहानी कह, अपना थिएटर करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपको कुछ स्पेशल होने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट ऑर्डिनरी थिंग्स, सबसे ऑर्डिनरी चीजें, लोग तो कचरे से निकाल के थिएटर करते हैं। थिंग्स, जो एक आदमी है अमेरिका में, उसका नाम है पॉल जलूम, आप उसका काम ऑनलाइन देख सकते हैं। वो सारी रात न्यूयॉर्क के सड़कों पे घूमता है, लोगों के कचरों में से, कचरे के डब्बों में से चीजें उठाता है और अगले दिन सुबह उन सारी चीजों से नाटक बनाता है। जो सबसे ऑर्डिनरी चीजें हैं, सबसे तुच्छ जिनको हम मानते हैं, एक दिन उठाते हैं अगले दिन फेंक देते हैं, उनमें भी कुछ एक खासियत है जिससे कि वो कहानी कह सकते हैं। they can communicate, they can tell their stories। जो हमने देखा, हमने एक मामूली आलू और एक पीलर के साथ एक कहानी कही, और वो कहानी आप लोगों ने खुद अपने दिमाग में बना ली। आलू और पीलर ने तो वही किया जो वो करते हैं। You made the story, the audience's mind made the story। ह्यूमन एक्टर का काम सिर्फ है ट्रिगर प्रोवाइड करना। एंड दिस एसेंशियली इज ऑब्जेक्ट थिएटर की फिलॉसफी भी यही है कि द मोस्ट ऑर्डिनरी थिंग्स, द मोस्ट ऑर्डिनरी स्टोरीज, जो मामूली चीजें हैं, जो मामूली कहानियां हैं, वो सुनने लायक हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो है ना, वो खिड़कियां हैं, वे डिफरेंट विंडोज। हम हर रोज बहुत सारी चीजों से घिरे हुए रहते हैं। We live surrounded with so many objects। कुछ चीजें हमारे घर में बहुत सालों से होती है, वो कभी अलमारी के पीछे कहीं दब जाती है, बहुत सालों बाद निकलती है, और फिर जब निकलती है फिर उसके साथ कोई एक मेमोरी याद आती है कि अरे ये तो वहां मिला था, इसके साथ तो मैंने ये किया था, ये मेरे बचपन की चीज है, देखो अब जाके मिली। फिर कुछ चीजें होती है जो एकदम नई होती है, घर पे किसी कोने में पड़ी रहती हैं, हम हर रोज साइड से गुजर रहे होते हैं लेकिन उसको देखते भी नहीं है। लेकिन हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एक कहानी छुपी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट खिड़कियां हैं। सारी ऑब्जेक्ट जो है आपकी मेमोरीज के, वो आप खिड़की मेमोरीज की तरफ खोल सकते हो, वो आप खिड़की मटेरियल कल्चर की तरफ खोल सकते हो। ये पेन, और जो पुराने जमाने में पेन यूज हुआ करते थे, वो एक स्टोरी बताते हैं अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। ये कंटेम्परेरी कल्चर, हमारे आज के कल्चर के बारे में कुछ कहता है, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं कहता, ये इकोनॉमिक्स के बारे में भी कहता है। ये सबके घर में नहीं होता, हमारे देश में तो नहीं होता, जो बहुत प्रिविलेज लोग हैं उसके घर में होता है। ये शायद सबके घर में होता है। ये भी एक इसमें और इसमें स्टेटस का फर्क है, इकोनॉमिक्स का फर्क है, पॉलिटिक्स का फर्क है, मटेरियल कल्चर का फर्क है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी खिड़कियां ऑलरेडी घुसी हुई हैं। वो जो नाटक बना रहा है उसके ऊपर है वो कौन सी खिड़की खोले, किस दिशा में अपना नाटक लेके जाना चाहते हैं।
और so this is largely more or less जो ऑब्जेक्ट थिएटर क्या है, ऑब्जेक्ट थिएटर क्यों है और ऑब्जेक्ट थिएटर कैसे है. The last thing that I would like to do is possibly show you a छोटा सा वीडियो. देखना चाहेंगे एक परफॉर्मेंस छोटा सा? उसके लिए ना मुझे आप लोगों को 1 सेकेंड, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है फॉर सम रीजन. Oops. Arun, please allow ma'am to share her screen. Yeah, but my screen is frozen. Yeah, मतलब मैं तो कुछ भी वो नहीं कर पा रही हूँ. Can somebody else share screen? Sure. YouTube से निकाल सकते हैं. मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है, मतलब मैं तो कर्सर भी नहीं हिला पा रही हूँ. That's totally fine ma'am, आप दिख रहे होंगे. Arun? कौन शेयर करेगा? मैं करता हूँ. Arun will do it. Okay. अरुण, आप YouTube पे जाइए. जी. आप टाइप कीजिए. ओह, माय कीबोर्ड इज वर्किंग. मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ. इसको सर्च कीजिए. मैम चैट बॉक्स में आया नहीं अभी तक. ये मैंने किसको भेज दिया? दिव्या को भेज दिया. यार, there's something wrong with my computer. Divya, can you copy paste it? If Divya is there, then can you send it? I don't know how Divya के पास आया. ये परफॉर्मेंस जो है ये 1980 में खेला गया था. किसी थिएटर में नहीं खेला गया था. ये खेला गया था किसी के ड्राइंग रूम में, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे एक दूसरे के घर पे मिलते थे हर वीकेंड को, ऑब्जेक्ट्स को लेके खेलते थे. उसमें से ये नाटक निकल के आया. ये इस नाटक के बाद से ऑब्जेक्ट थिएटर का नाम पड़ा, क्योंकि ऐसी चीज लोगों ने पहले कभी देखी नहीं थी. एक इतना अजीबोगरीब ये प्ले ऐसा पहले कभी किसी ने देखा नहीं था. लेकिन ये प्ले ने थोड़ा सा थिएटर की दुनिया को हिला दिया था कि अरे ऐसा भी नाटक हो सकता है. इन सारी ये नाटक के लीड कैरेक्टर्स हैं. एक ह्यूमन परफॉर्मर, बहुत सारी टॉफीज, एक इनो टैबलेट और एक पानी का ग्लास, बस. मैम I think but actually Divya is not here. So मैम आप मुझे नाम बता दो, मैं YouTube पे सर्च करके I will share the screen. Yeah, it's Christian, CHRISTIAN. Christian. Yeah, Christian Carigno, CARRI. मैम ये ठीक है, क्रिश्चियन ठीक था. मैम आप वीडियो चला रहे हो तो वॉइस आ रही है उसकी. सॉरी, आप अपना वीडियो पॉज कर दीजिए. अगर आप वीडियो चलाया आपने तो प्लीज वीडियो पॉज कर दीजिए. मैंने नहीं चलाया, मेरा तो स्क्रीन ही फ्रीज है. I don't know why this has happened. Oh, sorry. मेरे में I don't know. मेरे में दिक्कत थी, sorry. हाँ जी मैम. Christian, CHRISTIAN. Carignon, CARRIGNON. CARRI. Double R, and type MOOP, MOOP, MOOP. Christian Carigno is the first wala. Christian Carigno is the name of the artist. 1 second, मैं वॉइस के साथ करता हूँ. पिछली बार वॉइस नहीं आई थी. Yeah, Christian Carigno आर्टिस्ट का नाम है. ये फ्रेंच आर्टिस्ट है. ये शो बनाया था, ये इनका शो नहीं है. ये शो बनाया था एक हंगेरियन आर्टिस्ट ने, और 5 मिनट का शो है. कैन यू
वहां अरुण जस्ट टेक इट टू द पहले के 1-2 मिनट काट दो, क्योंकि वो वहां पे से बोल रहे हैं, जहां से वो चेयर पे बैठते हैं वहां से ले लो। हाँ, यहाँ से ले लो। बहुत स्क्रीन को फुल स्क्रीन कीजिए, देखिए ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटी छोटी हैं, सो थोड़ा मैम वॉइस आ रही है ना, मतलब की वीडियो की आवाज तो वॉल्यूम तो आ रही है? मेरे पास नहीं आ रही, बाकियों से पूछिए। अंकित भाई प्लीज कंफर्म करना। आ रही है। आ रही है। बाकी सबका ऐसा जर्की आ रहा है क्या? मेरा बहुत जर्की आ रहा है। मेरा भी वैसे ही रुक के आ रहा है ना? अरुण just check shut speed 0.57 इंटरनेट स्पीड ना, एक काम कीजिए, लेट इट बी। आप लोग इसको, क्योंकि ऐसे रुक के फिर समझ में भी नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। आप लोग इसको अपने आप से देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। Arun, just drop the link of this video in the chat. We'll have it after the session. Okay, so अगर ये वीडियो देख पाते तो that would have been interesting, लेकिन ये आप लोग अपने आप से भी देख सकते हैं। पता नहीं मेरी स्क्रीन को क्या Let me try one more time. But hello. सर आपका नेट सही है तो मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ शेयर करने की, आप कर दो। Please share me up. Let me try. सर करिए, आप शेयर कर सकते हो। Just give me 1 sec. Yeah. Yeah, I'm ready. Okay, let's try it. Yeah. आप लोगों को give me अगर रुक के आ रहा हो, विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा। Yeah, please share. Anu, Arun. Yes, sir. Is it okay, everyone? Arun? Yes, sir. Aspirina, come si dice in italiano? Sì, è un'aspirina francese, ma mi dispiace. 2,11 €. Hopla. 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 Hopla.
Jutrat. Muita feticito cate poto pruti, i feticito te corotti, me cato fetioso te catapotinho, e cato fetio. Ma to fetio coticio to fetio copetio, cate fetio, pecato fetio sote pacatio. Fetio pecato fetio se piccituca, yuca, arrote picchi seccato. Pecotti cotti suca, iacche toppi, yucchi sacchi tappi, rucchi tacco, o se vedi che c'ho scioccoppe, vedi poi si soppecchi, i che picco da pezzo sotto fare, pezzo cocci. Unica pezzo tutti secco toppi, chi si che pezzo così si chiappa, oggi faccio Yopla, yopla, yopla. Teso joponia, teso jopata, moka teshira wadamastipe, yakata pichasa katapilo. Simno, Mokatomatic Karabatis, or Cataveta Topica. Yopla! Ross, Pacatapata, the most of what's about Eccoti, vaccato, yaccatu picota, yaccatu ti si tocca, vacchi tocca, e se ti ho pagato questo perché? Io so perché ci sono una volta per siete perché si peccata. Ma se ti passi per te passi, ma date cazzo passi ti fa che ci si peccata. E so man si sente capace per sapere con... Non so. Mi faccio sapere cosa, mi faccio sotto peccato faccio, vedo se ti faccio cosa, mi faccio sotto. Nobody's above the nobody's a solid sailor.
Заплачут. Мне заплатить. Согласен, я заплатил, Jopla. Attention. Attention. Nobody Jopla. I also know what you're shadowing my to see what I can love was your Jopla. Lost Jopla. Good much of I really don't know video quality कैसा था, आप लोगों को क्या दिखा, क्या समझ में आया, I don't know. But anyway, that's it from me. अगर किसी के कोई सवाल है, we can have an informal discussion, conversation, question answers. Thank you, ma'am. आपने काफी चीजें हमें समझाई और एज एन एक्टर हम ऑब्जेक्ट्स को बहुत तवज्जो देते हैं जब भी किसी एक्ट में हम यूज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि कैसे वो कैरेक्टर को आगे मोटिव दे सकता है. Now I would like to request our participants to please drop your questions in the chat box so I can ask your questions one by one. और as ma'am said कि अगर आपको माइक अनम्यूट करके खुद से पूछने का मन हो तो हम वो भी कर सकते हैं. Ma'am, I have a question regarding the video. Like, मतलब हमें कहाँ तक समझ है? I guess okay. So we have one participant. Arun, you want to ask some question, right? हाँ, एक्चुअली मेरे पास था. मैंने उससे जितने टाइप करूँगा मैं पूछ लेता हूँ. Go ahead.
आवाज आ रही है मेरी क्लियर? मैम सबसे पहले थैंक यू, मतलब इट वाज मतलब बहुत मजा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ऐसे मोमेंट पे, क्योंकि तो माइंड ब्लास्ट हो गया। मतलब मैम जैसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था, एक बार पहले भी सर ने आपकी वीडियो दिखाई थी जहाँ आप puppet का कुछ कर रहे थे ऑब्जेक्ट के साथ, तो अभी जैसे इनकी सर की जो वीडियो देखी उसमें एज एक्टर जो परफॉर्मर है, जो मीडिएटर है, वो ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहा है, वॉइस निकाल रहा है, साथ में एक्ट भी कर रहा है, एंड उसके थ्रू हम तक पूरी बात पहुंच रही है। वो हमारे ऊपर है, हम उसका क्या मीनिंग निकालें। आपने बीच में जो सेगमेंट किया था उसमें आप मोबाइल के साथ कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए प्रेजेंटेशन, जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी बात कह रहा है, हम तक मीनिंग पहुंच रही है, लेकिन उसमें वॉइस पहुंच रही है, लेकिन एक्टर का दिखना आई थिंक उतना जरूरी नहीं था वहां पे। तो क्या ये पीस पर डिपेंड करता है, या ऑब्जेक्ट थिएटर में कोई रूल है जिसमें एक्टर का दिखना, वॉइस तो जरूरी है ही, लेकिन एक्टर का जो पीछे उसका फेस दिखना इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है? वो डिपेंड करता है आप कैसी बात पहुंचाना चाहते हो। हाँ, वो प्ले पे डिपेंड करता है। आप जब आपको टाइम मिले आप यूट्यूब पे एक और वीडियो देख सकते हैं, शो का नाम है फ्रैजाइल। मैं टाइप नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। आर्टिस्ट का नाम है, वो जो मेरी टीचर हैं एग्नेस लिम्बोस, ये अंकित आपको नाम भेज सकते हैं। शो का नाम है फ्रैजाइल, नहीं सॉरी, ट्रबल्स। उसमें एक शादीशुदा जिंदगी की एक नॉर्मल जो कपल होते हैं उनकी कहानी है। 3 स्टेज में उनके लाइफ के बारे में बताया गया है, जब उनकी पहले शादी होती है, फिर शादी के कुछ साल बाद और फिर शादी के कुछ और साल बाद, 3 हिस्सों में है। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब एक्टर और ऑब्जेक्ट दोनों को परफॉर्मर्स हैं, को एक्टर्स हैं। थोड़ी कहानी ऑब्जेक्ट के थ्रू कही जा रही है, थोड़ी कहानी एक्टर के थ्रू कही जा रही है। ये वाला वीडियो जो आपने देखा उसमें ह्यूमन एक्टर परफॉर्मर जो है उसका काम है ऑब्जेक्ट्स की मदद करना। वो उसका कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है, ही इज परफॉर्मिंग, लेकिन वो एक कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा है। उस वाले जो शादी वाला जो वीडियो है, जो ट्रबल्स है, उसमें दे आर प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड इट इज वो वही कभी द फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह की थिएटर की है कि आप एक कैरेक्टर भी रह सकते हैं। आप जैसे स्टोरी टेलर्स होते हैं, कई कैरेक्टर्स चेंज कर सकते हैं। वो कभी इंटरेस्टिंग प्ले इसलिए है कि एक दूल्हा है, दुल्हन है, कभी दूल्हा दुल्हन बन जाती है, कभी दुल्हन दूल्हा बन जाता है नाटक के दौरान, फिर कभी वो स्टोरी टेलर्स बन जाते हैं, फिर कभी वो वेटर बन जाता है, फिर कभी वो भेड़िया बन जाती है। दे प्ले मल्टीपल रोल्स। कभी कभी वो लैंडस्केप बन जाते हैं, दे बिकम लैंडस्केप जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। इट्स वेरी रियली वेरी इजी टू इट्स रियली वेरी इजी टू सी। बस जा रही है, मैं बस में बैठी हूँ, मैं बस चला भी रही हूँ और मैं बस में बैठी भी हूँ। और मैं वो सेट भी हूँ जिसके ऊपर बस चल रही है। पहाड़ पे चढ़ गई और जो कैरेक्टर जो बस के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ गई, मेरे को पहाड़ पे उल्टी आती है, मेरे को बस में बैठ के उल्टी भी आ गई। मैं बहुत सारे किरदार एक साथ भी कर सकती हूँ। सो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। आर्टिस्ट का नाम क्या है? सॉरी, आर्टिस्ट का नाम क्या है? ट्रबल्स बाय Agnes Limbos, Agnes Limbos. अंकित, यू कैन टाइप द नेम, क्योंकि आपके पास वो नाम है ना उनका, मैं तो टाइप भी नहीं कर पा रही हूँ। जी मैम, आई विल जस्ट अरुण, मैं दोबारा पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके। So ma'am, we have a question from Soumya. She's asking, can we say personification is a strong element of object theatre?
Anias Lambos, Limbos. हाँ, the question is, can we say personification is a strong element of object theater? पहले तो मुझे personification का मतलब समझाइए, फिर मैं इसका जवाब दे सकती हूँ. I would like Soumya to please unmute and. Personification. Hello ma'am, thank you so much for the session. It was really good, eye opening. और जो आपने एक चीज कही कि आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें खिड़की होती है, तो काफी नजरिया ही बदल गया है. मतलब ऐसे चलते फिरते चीजों को देखने का, और जो हर ऑब्जेक्ट की कहानी होती है. एक्चुअली मेरे हाथ में जो पेन था और मैंने ऑब्जेक्ट दिखाया, उसकी भी मुझे कहानी याद आ गई कि अच्छा हाँ ये ऐसे मिला था. थैंक यू सो मच फॉर दिस. पर्सोनिफिकेशन मैंने इसलिए कहा, मतलब मे बी दिस इज अ वेरी स्टूपिड एंड नॉट वेरी रेलिवेंट एग्जाम्पल, लेकिन राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडी एक तरीके की करते थे जिसमें वो हर ऑब्जेक्ट को वो क्या सोच रहा है या वो क्यों, मतलब अगर ट्रेन का कोई हैंडल भी है तो वो अगर खाली हिल रहा है तो उसे बड़े मजे आ रहे हैं कि चलो आज भीड़ नहीं है तो अब मैं ऐसे स्विंग करते हुए जा सकता हूँ. तो वो ऐसे उसकी कहानी हर ऑब्जेक्ट की बताते थे. यहाँ पे ऑफकोर्स प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट है, लेकिन इफ आई एम थिंकिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट थिएटर आर्टिस्ट, तो मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट्स मेरे सामने देख रही हूँ तो इज इट कि हाँ उसको एक पर्सनालिटी देनी है, मतलब उनको पर्सोनिफाई करना है कि हाँ ये है या इसकी ये अगर मुझे इसकी कहानी बतानी है तो मुझे इसका पर्सोनिफिकेशन करना पहले जरूरी है, रादर देन मतलब जैसे हमने जो अभी एक्टिविटी करी जिसमें आपने ऑब्जेक्ट दिया था कि ये तुम हो, तो उसमें शायद अपना एलिमेंट डाला कि ये मैं हूँ. लेकिन अगर मैं आउटसाइड एज मतलब बाहर से देखूं तो उसको पर्सोनिफाई करना कि हाँ दिस थिंग इज अ पर्सन, मतलब इज दैट अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जब हम कोई कहानी बनाने जाए. जितना मैं समझ पा रही हूँ, पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी एक चीज पे कोई एक पर्सनालिटी या कोई एक एट्रीब्यूट उसके ऊपर उसकी परत चढ़ाना. इज दैट करेक्ट? क्या मैं सही समझी हूँ? हाँ मतलब जैसे आपने जब ऑब्जेक्ट दिया तो हम लोगों ने शायद उसको खुद से आइडेंटिफाई किया कि अगर ये मैं हूं तो ये मैं क्यों हूं. लेकिन मैं अगर ऑब्जेक्ट मैं पर्सोनिफाई करूं तो शायद मैं ये करूंगी कि नहीं ये खुद ही एक अपनी एक चीज है. मतलब अगर मुझे उसको उसको पहले एक लाइफ देनी है कि नहीं दिस इज, और आगे पीछे सोचना है, उसके बाद उसके अराउंड कहानी बनानी है. तो मतलब इज दिस हाउ वी स्टार्ट और शुड दिस बी प्रोसीजर? आई थिंक मैं समझ गई हूँ आप क्या पूछ रही हैं. पर्सोनिफिकेशन इज इंटरेस्टिंग वर्ड. वो क्या करता है, वो हर चीज में ह्यूमन पर्सनालिटीज ढूंढता है, जो लार्जली पपेट थिएटर का काम है. पपेट थिएटर हर डेड चीज में उसी तरह लाइफ डालता है जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स में लाइफ होती है, जिस तरह हम लोगों में लाइफ होती है. तो पर्सोनिफिकेशन इज मोर इन द रेल्म ऑफ पपेट थिएटर. अगर ऑब्जेक्ट थिएटर की बात करें तो द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन मतलब उसमें पर्सनालिटी, ऑब्जेक्ट में पर्सनालिटी होने की जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्ट रोता नहीं है. ऑब्जेक्ट खुद ब खुद कुछ महसूस नहीं करता, क्योंकि वो नहीं करता. वो है पीलर, वो है कप, उसमें ह्यूमन क्वालिटीज नहीं है, लेकिन हम उसमें ह्यूमन क्वालिटीज इमेजिन कर सकते हैं. तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कप रोएगा, क्योंकि ये नहीं रो सकता, लेकिन हम ये कप के अंदर से पानी छिड़कने से हमारी आंखें, हमारा माइंड ये इमेजिन कर सकता है कि वो शायद रो रहा है, लेकिन कप तो वही कर रहा है जो कप करता है. So the more correct, appropriate word is transposition. Rather than transform the cup, you impose an idea, an association onto the cup. So the starting point is not, जरूरी नहीं है कि आप ये मान लें कि कप रो रहा है. आप ये मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट थिएटर ये मान लेता है कि
कप के अंदर से पानी छिड़क रहा है, लेकिन मुझे रोना दिख रहा है। बहुत इट्स वेरी क्लोज, वेरी सिमिलर थिंग्स, बट सिर्फ हल्की सी लेंस अलग है। इसीलिए ऑब्जेक्ट थिएटर को पपेट्री का फर्स्ट कजन बोलते हैं। It's very similar but slightly different. Thank you so much. Thank you, ma'am. I'll definitely explore this word transposition and try to think like that. Thank you. I had a question. Okay, who's that? May I ask? Yeah, sure. Go ahead. Okay. तो आपने जैसे कहा कि ऑडियंस अपनी स्टोरी अपनी तरीके से इंटरप्रेट करती है, लेकिन लेकिन अगर एज द एक्टर और एज व्हेन हम जब एक प्रोडक्शन को बना रहे होते हैं, प्ले को बना रहे होते हैं, तो वी हैव अ स्टोरी दैट वी वांट टू टेल एज वेल। तो हम जब ऑब्जेक्ट थिएटर के थ्रू हाउ डू वी इंश्योर कि वो स्टोरी जाए by providing the lens। जो हमने शुरू में जो गेम खेला उसमें हमने जो ट्रिगर दिया था ऑडियंस को कि आप ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट आप हो, ये आपने एक फ्रेम दे दिया ऑडियंस को, आपने एक लेंस दे दिया। हम ये भी बोल सकते थे कि ये ऑब्जेक्ट इंडिया है, ये ऑब्जेक्ट औरत है, ये ऑब्जेक्ट मेरे सपने हैं। कोई भी आप लेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप वो लेंस किसी भी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। आप बोल के प्रोवाइड कर सकते हैं, थ्रू डायलॉग्स, थ्रू म्यूजिक, थ्रू रिटन, थ्रू एक्शंस, 1000 पॉसिबिलिटीज हैं। सो आपने जैसे ही फ्रेमवर्क तैयार कर दिया, अब उस फ्रेमवर्क के अंदर आप जो भी करेंगे ऑडियंस उसी दिशा में सोचेगी, क्योंकि आपने उनको बता दिया कि कहानी किस चीज के बारे में है। जो मैंने वीडियो शेयर किया था, आई रियली डोंट नो किसको कितना दिखा है, क्योंकि वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। आप उसको टाइम मिले तो जरूर देखिएगा अपने आप से अपने घर पे। इट्स एन इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस बिकॉज वहाँ पे जो लेंस प्रोवाइड किया गया है वो एक्शंस के थ्रू किया गया है। वो किसी को उसमें बच्चे दिखते हैं, किसी को उसमें अपने स्कूल का टाइम दिखता है, किसी को उसमें वो टाइम दिखता है जब उसने नया ऑफिस ज्वाइन किया था और दूसरे लोग उसको अपने ग्रुप में नहीं ले रहे थे। तो कॉन्टेक्स्ट सबको अपनी लाइफ के दिखते हैं, लेकिन जो मुद्दा है कि आई वॉन्ट टू बिलोंग और मैं फिट नहीं हो पा रही हूँ, जिस ग्रुप में मैं फिट होना चाहती हूँ उस ग्रुप में मैं फिट नहीं हो रहा, मैं रिजेक्ट होती चली जा रही हूँ बार बार। तो उसको जो कहना था उसने कह दिया, लेकिन उसने मुझको ये स्कोप दिया कि मैं अपने आप को इमेजिन कर लूँ उसमें। आप अपने आप को इमेजिन कर लो। तो आइडियली तो आई थिंक हर थिएटर में ही यही कोशिश होती है कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं अपनी बात पहुंचाऊं, लेकिन मैं इतनी जगह छोड़ दूं कि ऑडियंस अपनी कॉन्टेक्स्ट वो कहानी अपना बना सके। तो ऑब्जेक्ट थिएटर इस तरह से करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू अनन्या फॉर द क्वेश्चन। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस मैम, थैंक यू। ओके, सो आई थिंक वी कैन मूव अहेड। मैम अगला सवाल है अश्विनी का। इज आस्किंग ऑब्जेक्ट थिएटर को मॉडिफाइड और मैनिपुलेट करके ही क्या कार्टून और एनिमेटेड मूवी में ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है? एक्चुअली उल्टा है। ऑब्जेक्ट थिएटर ने सिनेमा से बहुत बोरो किया है। ऑब्जेक्ट थिएटर ने बहुत सारे आर्ट फॉर्म से बहुत बोरो किया है। चोर है। पॉपेट्री से तो बोरो किया ही है, एक्टिंग से बोरो किया है, प्लास्टिक आर्ट से बोरो किया है, विजुअल आर्ट से मतलब पेंटिंग से बोरो किया है, एनिमेशन और सिनेमा से बहुत बोरो किया है। वेरी सिंपली क्लोजअप्स एंड लॉन्ग शॉट्स, ये वाला जो कैमरा का लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट थिएटर ने उसको सीधा उठा के अपने पॉकेट में डाल दिया। ये जो है ये वाला जो मैं अभी थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन कर रही थी कि बस चल रही है और के अंदर बैठी भी हूँ। This is a long shot and this is the close up because मैं बस के अंदर हूँ, so it borrows a lot
from cinema. Or of course in reverse, स्टॉप मोशन एनिमेशन देखा होगा आप लोगों ने. स्टॉप मोशन एनिमेशन में बहुत ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है. इस तरह से उसने सिनेमा को वापस दिया है. ऑब्जेक्ट थिएटर ने बोरो भी किया है और वापस भी दिया है. So there is a close connection. Yes, very well observed. It's a very good observation. Thank you, ma'am. The next question is from Dhruvi. He wants to ask, how much is the object theater relevant in cinema? Object relevant in cinema. How much is object relevant in cinema, or the application of object as a we have or the application in similarity of languages की बात कर रहे हैं. Animations के साथ जो close relationship है वो तो दिखता ही है, वो तो जाहिर है. I think evident to everybody. In terms of what films have been made on objects, there have been lots. Then what films have been made with objects? So, like I said, a very give and take relationship between the language of object theater and the language of cinema. Very similar, very similar. But Dhruv, Arun, do you mean ki how much is an object relevant in cinema, or how much is object theater? What is the relationship between object theater and cinema? मैम एक्चुअली क्वेश्चन ध्रुवी का है. आई थिंक वो अच्छे से इस तरीके से. मैम इट्स मोर अबाउट कि ऑब्जेक्ट जिस तरीके से हम थिएटर में एक ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी या फिर ऑब्जेक्ट की कहानी सुनाते हैं, तो हाउ मच इज द ऑब्जेक्ट स्टोरी टेलिंग एंड ऑब्जेक्ट रेलेवेंस इन सिनेमा. So matlab in animation there is a lot. In your actors cinema, I don't know a lot really. There have been some films, I'm sure. There was a wonderful film that a company called Harkat Studios had made, which is called film ka naam tha And Sometimes She Loved Me Too. I think वो film YouTube पे available है. It was a beautiful film because उस film में कोई लोग नहीं है. वो ऐसी एक घर में कैमरा घुसता है जो घर बिखर चुका है. उसमें जो कपल था वो सेपरेट हो चुके हैं, वो डिवोर्स हो चुका है उनका आई थिंक. और घर में जो सारी चीजें छूट गई हैं, जो उन्होंने छोड़ दी है, किसी ने वो डिवोर्स के दौरान या सेपरेशन के दौरान वो सारी रिजेक्टेड चीजें हैं. तो उन रिजेक्टेड चीजों के जरिए हमें उनके रिश्ते के बारे में, उनके रिलेशनशिप के पूरे डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है. बहुत खूबसूरत फिल्म है. It's only visuals and voiceovers. There's no human actors. But film के end तक आप उन कैरेक्टर्स को इतना अच्छे से जान लेते हैं. Because वो सिर्फ अपनी कहानी कह नहीं रहे हैं. वो ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो डायलॉग्स में नहीं थे. जैसे कि एक टूटा हुआ प्लेट, एक लिपस्टिक पड़ा हुआ है, लिपस्टिक के ऊपर दांत के निशान है. फिर ऑटोमेटिकली दिमाग सोचने लग जाता है, अरे ये क्या हुआ इस लिपस्टिक के साथ, दांत के निशान क्यों है. तो बहुत सारी कहानियां बोल के कहते हैं और बहुत सारी कहानियां वो बिना बोले ही कह देते हैं. It's a very interesting film. अगर आपको मिले तो जरूर देखिएगा. Thank you, ma'am. The next question is from Rohit. He wants to ask, does object theater mean showing only object story, or we already have a topic and we decide it accordingly? Depends on what you want to say. I think the most important thing in theater is कि हम क्या कहना चाहते हैं, right? अब ऑब्जेक्ट थिएटर इज ओनली अ मीडियम. वो सिर्फ जिस तरह से एनिमेशन, पपेट्री, राइटिंग, बुनाई, पेंटिंग, ये वो जो सारी मीडियम्स हैं, ऑब्जेक्ट थिएटर भी एक और मीडियम है.
how you can approach it in so many different ways. आप स्क्रिप्ट लिख के शुरुआत कर सकते हैं, आप इम्प्रोवाइजेशन से शुरुआत कर सकते हैं, या अभी मैं जो कर रही हूँ, मैंने भी कई अलग अलग तरीकों से ट्राई किया है. अभी जो मेरा करंट नाटक का जो प्रोसेस है, देयर इज एन आइडिया, देयर इज अ थॉट, और उसको थोड़ा सा लिखा, फिर जो लिखा उसको खेला, इम्प्रोवाइज किया, फिर वो इम्प्रोवाइजेशन के हिसाब से वो लेखन चेंज हो गया. So it's a give and take sort of process. That is my current process right now. But I've tried them all. मैंने सब try किया. I've also started with no idea. Idea है ही नहीं, सिर्फ objects. अब देखते हैं objects से क्या idea निकल के आता है. ये भी try किया है. ये नाटक 2.5 साल से बन रहा है, अभी तक नहीं बना. शुक्रिया मैम. I hope Rohit has got his answer. Ma'am, next question is from. If anybody is not getting, just one moment, Ankit. If anybody is not getting their answer, please say so. Please बताइएगा कि I need further explanation. Yeah, you can drop a message in the chat box. Okay. Moving ahead, ma'am, Fazil wants to ask how object theatre is different from puppetry. This is a very it's a tricky question. Okay. It's a tricky question because मैं सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन दे सकती हूँ, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो डेफिनेशन बहुत क्लियर होगा, बिकॉज हम अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट थिएटर का एक्सपोजर नहीं है. तो द वेरी सिंपल फंडामेंटल डिफरेंस इज पपेट थिएटर डेड चीजों को जिंदा करता है. एनी डेड मटेरियल, चाहे वो डॉल जैसा दिखता हो या चाहे वो आपके पैर में पड़ा हुआ जूता जैसा दिखता हो, एनी डेड मटेरियल being brought to life is puppet theater. Okay. Object theater fundamentally does not bring any dead material to life. वो उसको जिंदा नहीं करता है. वो ऑब्जेक्ट जो है जैसा है, जो उसका फंक्शन है, उसी फंक्शन के जरिए वो अपनी बात कहता है. जैसे कि हमने आलू के साथ जब खेल रहे थे, तब हमने उसको जिंदा नहीं किया था, हमने आलू को सिर्फ छीला था. कहानी तो आप लोगों ने बनाई, आलू ने नहीं बनाई. आलू को ना रोना पड़ा, आलू को ना चिल्लाना पड़ा. अगर कोई चीख आई तो वो आपके दिमाग से आई, ना ही आलू को ऐसा कुछ कहना पड़ा कि अब तो मैं अपने चिप्स बनने के लिए तैयार हो रहा हूँ. वो तो आपने कहानी बनाई. तो ऑब्जेक्ट थिएटर ऑब्जेक्ट को जिंदा नहीं करता है. अपने जो वीडियो हमने देखा वो ऑब्जेक्ट थिएटर और पपेट थिएटर का कॉम्बिनेशन है. वो प्योर ऑब्जेक्ट थिएटर नहीं है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मेंसेस. तब ऑब्जेक्ट थिएटर इवॉल्व हो ही रहा था और पपेट्री से ही इवॉल्व हो रहा था. तो जो आर्टिस्ट थे वो अपने पपेट्री के बहुत सारे स्किल्स लाके नई चीजें ट्राई कर रहे थे. उसके बाद और इवॉल्व होते होते अब जाके ये डेफिनेशन आया है. तो बहुत सारे, जब वो टॉफीज खेल रही हैं, कूद रही हैं, तब आप मान लेते हैं कि वो जिंदा हैं, वो बच्चे हैं, या जो भी हैं, जो भी आप मान लेते हैं. लेकिन जैसे ही उसको खोला और खाया, वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टॉफीज को सब तो यही करते हैं ना, खाते ही हैं. जैसे कोई, अगर आपने मान लिया कि वो बच्चा है, वो टॉफी बच्चा है या कोई इंसान है, जैसे ही उसको खोला और खाया, आपको क्या लगा? उस बच्चे के साथ क्या हुआ? उस इंसान के साथ क्या हुआ? What did you imagine? Fazil, if you can just unmute yourself and answer the question. Yes, ma'am. What did you feel when the toffee was eaten by that man? See, what I concluded in simple terms is that everyone, by using a simple metaphor, that everyone has its own identity and uniqueness. When we try to mix up where we actually don't belong, and even if we try hard, we change ourselves, we mold ourselves, but eventually जो हम हैं, वो जो हमारी यूनिकनेस है, या आप किसी भी टर्म्स में हम उसको तोल सकते हैं, वो वही रहेगी. टॉफीज थी,
उनका एक्चुअली में यूज whatever they were denoting, उनका यूज वही था. उस इंसान ने खाली उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, बट रादर जो इनो की टैबलेट थी, द कंजम्पशन वाज इनडायरेक्ट. सो नो मैटर हम कितना ट्राई करें मिंगल करने का, या जो चीज हम एक्चुअली में नहीं चाहते हैं उसको करने का, हम कितनी ही कोशिश कर ले पर इवेंचुअली कर नहीं पाएंगे हम. वी विल हैव टू कम बैक टू आवर ओरिजिनल यूज जो हम हैं. दैट इज व्हाट आई कंक्लूडेड. I don't know, am I making sense or not? Of course you are. Of course you are. So basically that's what I was trying to say कि fundamental difference object theater और puppet theater का यही है. Object theater object की qualities को इस्तेमाल करता है कहानी कहने के लिए, और puppet theater dead object को जिंदा करता है, उसको इंसानी रूप देता है. This is the fundamental difference. थैंक यू मैम. आई होप राघव को भी अपने सवाल का आंसर मिल गया होगा क्योंकि he has the same question. Fazil, do you want to ask something else? No. Thank you so much. Okay. Same as what Soumya said in the beginning. You gave a new perspective altogether. Thank you. Okay. Thank you, Fazil. Ma'am, the next question is from Shubham. He wants to ask. Okay, I'm getting some feedback. Arun, please take it. Ma'am, ऑब्जेक्ट थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर इसका कोई और पर्पस भी हम मान सकते हैं? मैम यू मैम प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए. वो एक्चुअली आपकी तरफ से इको आ रही है. मैम अनम्यूट कर लीजिए खुद को प्लीज. ओके. मैम की स्क्रीन फ्रीज है, आई थिंक उसकी वजह से दिक्कत हो रही है. हाँ ओके. Okay, we'll drop a message to her and नहीं वो सुन सकती हैं, हम लोगों को सुन सकती हैं. उनकी स्क्रीन फ्रीज है लेकिन, है ना मैम? Screen is perfect fine, Arun. Screen is perfect fine. नहीं just रिया आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. Screen is perfect fine. अच्छा you can't. एक्चुअली उनकी वो सिस्टम है वो हैंग हो गया है. वो मतलब वो चल रहा है लेकिन सिस्टम इज हैंग. She's saying she's on phone. She's calling sir. Sir, please. Sir को कॉल. Arun, can we unmute her from our नहीं मैं सिर्फ पूछ सकता हूँ, मतलब कि आप कर सकता हूँ उनको. मैम आपका नोटिफिकेशन आ रहा है? बात करें. So if she can rejoin us. हेलो. हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो अरुण. यस सर. जी सर आ रही है. हाँ श्वेती जी को हेलो सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ यू आर ऑडिबल अरुण. पता नहीं मेरे इंटरनेट में कुछ दिक्कत है मेरी तरफ से भी. क्या हुआ? Okay, participants we have to wait for a minute. Hello, am I audible? Yes. Participant, yes sir. you all have to wait for a minute because screen में as शुरुआत में मेंशन किया गया था टेक्नोलॉजी है तो कई बार ऊपर नीचे अपने हिसाब से चलती है. स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आया. श्वेती जी अभी थोड़ी देर में फिर से ज्वाइन कर रही है. ठीक है, तो आप लोग बने रहेंगे एक बार. थैंक यू. ठीक है.
सॉरी। Ankit, you can continue. Huh? What? So sorry, guys. I don't know what happened. It's totally fine. In this digital age, we have to face such issues. Okay. So, ma'am, you were saying something. Would you like to? I have no continue or- idea. Okay, it's okay. भूल ही नहीं मैं क्या बोल रही थी। Okay. So, ma'am, जो last हमारा question था वो शुभम से था कि क्या ऑब्जेक्ट थिएटर का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर इसको हम और कोई भी पर्पस दे सकते हैं? वाओ, ये तो तुमने बॉलीवुड वाला सवाल पूछ लिया यार। क्या आर्ट का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट है या आर्ट का पर्पस कुछ और भी है? ये तो बनाने वाले के ऊपर है, जो आर्टिस्ट है उसके ऊपर है, वो क्या बना रहे हैं। एंटरटेनमेंट भी हो सकता है आई थिंक, और जो भी आप चाहें वो हो सकता है। बट जो भी आप बना रहे हैं, चाहे वो सोशो पॉलिटिकल नाटक हो, स्टेटमेंट हो या एंटरटेनिंग, तो होना ही चाहिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऑडियंस बहुत भारी चीज देख के और फिर सो ही जाए, या इतनी चालाकी से आप बात कह दे कि ऑडियंस को लगे वाओ ये कितना चालाक डायरेक्टर है, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मुझसे कहीं ज्यादा चालाक है। तो जो भी आप बना रहे हैं एंटरटेनिंग तो होना ही चाहिए। तो सिर्फ एक छोटा सा एनेक्डोट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाले जो आर्ट फॉर्म्स है ना, पपेट थिएटर जो है, ऑब्जेक्ट थिएटर जो है, या कामिशीबाई है, हमारी पटचित्र जो होती थी, अभी भी जो होती है, हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, जो जिसमें ह्यूमन एक्टर सेंटर में नहीं होता, जिसमें कहानियां दूसरी चीजों से कही जाती है, चाहे वो पपेट से हो, ऑब्जेक्ट से हो, पेंटिंग के जरिए हो, इनकी एक इनके पास एक स्ट्रेंज क्वालिटी ये होती है कि ये बहुत सारी चीजें ना अलाउड होती हैं इनको। जैसे कॉमेडी में भी बहुत सारी चीजें अलाउड होती हैं कि आप स्टेज पे ह्यूमन एक्टर का अगर जैसे ईरान में है या कई सारी जगहों पे है दुनिया में जहाँ पे सेंसरशिप बहुत हाई है, ह्यूमन एक्टर्स को बहुत कुछ कहना अलाउड नहीं है, तो वो पपेट्स और ऑब्जेक्ट के जरिए कहते हैं, क्योंकि ये तो पपेट है ना, ये तो ऑब्जेक्ट है, इनको कौन सीरियसली लेता है। सो यू कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड गेट अवे विद इट। ये सारी हमारे देश में तो ये सारी काफी रिलीजियस चीजों से जुड़ी हुई थी, अभी भी जुड़ी हुई हैं। पपेट थिएटर की हिस्ट्री तो इज वेरी कनेक्टेड विद रिलीजन, बट अंडरग्राउंड मूवमेंट के हिसाब से ये सारी आर्ट फॉर्म्स बहुत यूज हुई। जो चीजें इंसान नहीं कह सकता वो चीजें ऑब्जेक्ट या पपेट कह सकता है, क्योंकि अरेस्ट किसको करोगे? आलू को। तो आपका आर्ट क्या है वो आपके ऊपर है, और उसमें कोई जजमेंट नहीं है। अगर आप इफ यू वांट टू मेक समथिंग जो एंटरटेनिंग है, जो उसका प्राइमरी पर्पस है, देन व्हाई नॉट। और अगर आपका बस यू हैव टू नो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये नाटक क्यों बना रहे हो, ये नाटक बनाना जरूरी क्यों है, और यही वाला नाटक बनाना जरूरी क्यों है। So artist leads the way. Ma'am, next question is from Weber. I don't know if he's here. He asked, who is more important in object theater, actor or the object? Depending on the style, in some styles the object is more important, और एक्टर का, ह्यूमन एक्टर का काम है ऑब्जेक्ट की मदद करना। बट एंड दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म, कि वो ह्यूमन एक्टर को सेंटर से, क्योंकि हम अपने आप को पूरे ब्रह्मांड का सेंटर मानते हैं ना,
कि क्योंकि हम लोग फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, बाकी सब लोग हमारे नीचे हैं, हम आजकल के डायनासोर है ना। तो बिकॉज वी आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, हम दुनिया को भी वैसे ही देखते हैं। हमको लगता है इंसान से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इस धरती पे, इसीलिए हम बाकी सारे जो हमारे कोहैबिटर्स हैं, हमारे साथ जो इस प्लेनेट पे रहते हैं, उनको हम हमसे नीचा ही मानते हैं। हम उनको किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इस आर्ट फॉर्म का पॉलिटिक्स ये है कि ये इंसान को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स से उठा के थोड़ा सा साइड में कर देता है। यू आर नो लॉन्गर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट नहीं हो, और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं दुनिया में। तो कई परफॉर्मेंसेस में द ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, और कई परफॉर्मेंसेस में ऑब्जेक्ट और ह्यूमन एक्टर दोनों बराबर पेडेस्टल पे होते हैं। कभी इसका पल्ला ऊपर, कभी इसका पल्ला ऊपर, लेकिन हमेशा ऐसे ही आ जाते हैं। वो ट्रबल्स वाला जो मैंने वीडियो बताया अनियस लंबोस का, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, the balance, the equality between the object and the actor। लेकिन ये बहुत इक्वल मीडियम है, बहुत इगैलिटेरियन मीडियम है। वो जो ऑर्डिनरी चीजें होती हैं और जिन चीजों को हम स्पेशल मानते हैं, उन दोनों चीजों को सेम बराबरी पे लाके खड़ा कर देता है। इट्स वेरी इगैलिटेरियन आर्ट फॉर्म। और वो सिर्फ आर्ट नहीं है ना, ये लाइफ फिलोसफी है। आप किस चीज को प्रीमियम मानते हैं, किस चीज को फालतू मानते हैं, किस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, उन सबको थोड़ा सा खिचड़ी बना देता है, सबको क्वेश्चन करता है। सीरियसली ये सच में इतना इंपॉर्टेंट है, या सीरियसली ये सच में इतना फालतू है? दोबारा सोच लो एक बार। ये फोर्स करता है ये सवाल पूछने को। Thank you, ma'am. Now we are left with just few questions. Next question is from Manya. She wants to ask, in object theater, what is more important, voice, speech, or physical acting, visuals? Oh, very interesting question. I'm trying to think इसको मैं बेस्ट कैसे आर्टिकुलेट करूं। इसकी ट्रेनिंग ना, इसमें जब पपेट्री और ऑब्जेक्ट थिएटर की जो परफॉर्मर की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का केंद्र अलग है, ट्रेनिंग की सेंटर अलग है। आप लोग जो एक्टर्स थिएटर में, आप लोग जब वार्म अप्स करते हैं या आप लोग जब कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं, तब आप लोगों की एनर्जी कहाँ से आती है? डायफ्राम से आती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ना, तो और ये ट्रेनिंग भी होती है कि व्हेन यू ब्रीद इन, डोंट ब्रीद इनटू योर चेस्ट, ब्रीद इनटू द डायफ्राम। सो एक्टर जो ह्यूमन एक्टर है एक्टर्स थिएटर में, उसकी एनर्जी डायफ्राम से आती है, क्योंकि वहां से आपका कैरेक्टर का लीड आता है। हमारी ट्रेनिंग जो आती है, द लीड ऑफ द परफॉर्मेंस, इट कम्स फ्रॉम हियर। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो आप यहाँ से चैनल कर रहे हैं। आप यहाँ से, आप अपने एनर्जी सेंटर से चैनल नहीं कर रहे हैं, आप अपने एनर्जी सेंटर को यहाँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि द फोकस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपने इतनी एनर्जी फेंक दी कि ऑब्जेक्ट तो खो ही गया, उसको किसी ने देखा ही नहीं, आप ही को देखते रह गए, आपने इतनी सारी एक्टिंग कर दी, तो खुद ही करो, उसको मत लाओ। So the balance and the moderation and the shift of focus between the object and the actor, इसकी ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होती है। The other really strong reason जो यहाँ से ट्रेनिंग शुरू होती है, इसलिए क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट या पपेट को देखते हैं, तब ऑडियंस ऑब्जेक्ट या पपेट को देखती है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं, आप जहां देखेंगे, ऑडियंस वहां देखेगी। So our training, a lot of it is about the moderation, और focus कहाँ है, और focus यहाँ से आता है। The focus is from here, between the eyes.
like the camera focus, वो यहाँ से आता है। तो हमारी a lot of the, तो अगर आप वॉइस भी कर रहे हैं, even if you're training in voice modulation, then ये necessary of course है कि आपकी voice last तक पहुंचे and all of that, but it is also audience को ये कैसे माने कि audience ये कैसे माने कि आवाज इस object के through जा रही है। ये ventriloquism नहीं है, it's only about focus। ये focus की बहुत training होती है। Thank you, ma'am. I hope Manya has got her answer. Ma'am, the next question is from Farhan. He wants to ask, don't you think if you use too much object theater in the cinema, you will lose lots of audience, even though it helps your performance making good as well? But don't you think if it is used too much object theater in cinema, you will lose the audience? Why? But I'm not making object theater in cinema. I'm making object theater. I actually didn't. Farhan, can you ask the question? मैं समझी नहीं, I think. Yeah, actually, what I'm trying to ask you is that so actually just before the session, there is a deja vu happened with me that I just recently watched a short film, and they actually use lots of object theater into that short film. Even though I personally love that short film, but after attending your session and after watching that movie, I just realized that movie is so nice, but इसकी टारगेट ऑडियंस बहुत कम हो गई, ऐसा मुझे लगता है। इवन तो उस पूरी शॉर्ट फिल्म में दे एक्चुअली यूज लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स अ साइलेंट मूवी, तो हर सीन में उन्होंने ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा यूज किया। तो मैं Can you tell me the name of the film? I would love to see it. मैम एक्चुअली वो अभी the thing is that it is one of my juniors film and it is not out right now, it's in festival, so I can't tell you the name as well. We were just normally discussing on certain stuff because we want me to see that film. Anyway, any time later जब वो public viewing के लिए release हो जाती है, if you're able to share the name, that would be great. I would love to see it. Coming to the answer to your question, I don't really care. I think अगर at some level it would be great if a lot of people were to watch this film or a lot of people were to watch my plays, but the fact कि for various different reasons it's a niche art form, it's a niche audience, it's a very localized art form, that is not enough reason for me to change what I do, because I really love it. मुझे बहुत मजा आता है और मुझे बहुत चैलेंज करता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मैंने कहनी है, जिस तरह से कहनी है, वो मैं इस मीडियम के और जिस तरह की आर्टिस्ट मैं हूँ, वो इस मीडियम के जरिए मैं कह पाती हूँ जो मैं शायद नेसेसरीली कोई इन अ मोर पॉपुलिस्ट आर्ट फॉर्म जो बहुत सारे लोग देखें, शायद मैं उस तरह से नहीं कह पाती या उस तरह से नहीं कर पाती या शायद उतना मजा नहीं आता मुझे। तो इट वुड बी ग्रेट इफ दुनिया बदल जाती और हमारा पूरा सोशियो पॉलिटिकल सोशियो कल्चरल सर्कल्स एकदम चेंज हो जाते, नोशंस चेंज हो जाते और ऑब्जेक्ट थिएटर दुनिया का सबसे पॉपुलर आर्ट फॉर्म हो जाता। वाओ, क्या कमाल की दुनिया होती वो मेरे लिए, बट वो ऐसा नहीं है and it's okay. It's more important for me कि मैं जो कहना चाहती हूँ, जैसे कहना चाहती हूँ वो मैं कह पाऊँ। और किसी भी आर्ट फॉर्म के पॉपुलर होने या ना होने के पीछे बहुत सारी कारणें होती हैं। This you can understand. A lot of it has to do with state policy also. A lot of it has to do with cultural history. A lot of it has to do with your मीडिया कल्चर, कंटेम्प्रेरी कल्चर, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। उतनी सारी चीजों पे एक बेचारे आर्टिस्ट का कंट्रोल तो नहीं हो पाता है। तो आप वही करें जो आपको लगता है आपको करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, जो आपको लगता है हाँ यही है,
ये इसी के जरिए मैं अपनी बात रख सकता हूँ, ये रख सकती हूँ। वही करें, बाकी सारी चीजों पे आप कोशिश करते रहे, नहीं होता है तो क्या करें भैया। अब आप जाके इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी तो नहीं चेंज कर सकते जिन्होंने डिसाइड किया है कि 0.000000001% हमारी थिएटर को फंडिंग जाएगी, अब उसका क्या करोगे आप? Okay, ma'am. Thank you. Moving on to the last question. Ma'am, Speedy wants to ask that what appealed you the most when you joined this form of theatre? I think the first thing that appealed to me was the unexpectedness of it. मैंने कभी अपनी घर की ये सारी फालतू चीजों को एज प्रॉप स्टेज पे देखी है, लेकिन प्रॉप्स और ऑब्जेक्ट्स में फर्क है ना। प्रॉप फिर भी ह्यूमन एक्टर को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट अपने आप में इतनी सारी चीजें कह जाता है। ये मैंने कभी देखी नहीं थी, तो द अनएक्सपेक्टेडनेस ऑफ इट वाज द फर्स्ट थिंग कि मैं एकदम थोड़ा सा है ये क्या हुआ, ऐसा भी होता है। ये चीज देख के आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया है, एंड द मैजिक ऑफ इट नो थ्रू दिस आर्ट फॉर्म। यहीं बैठे बैठे मैं I can go into the bus, and then the bus can fall off a cliff and it can rise again, and then it can fly over the moon. It can do so many things. There's a magic there's a very controllable magic. वो magic जो मैं यहाँ बैठे बैठे create कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे ट्रेपीज लगा के एक बहुत सा बड़ा बस लाके एक बहुत बड़ा चांद बना के उसके ऊपर कूदने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठे बैठे ये मैजिक क्रिएट कर सकती हूँ। दैट्स द सेकेंड। एंड द थर्ड थिंग आई थिंक जो कंसिस्टेंटली मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करता रहता है इज दिस आइडिया ऑफ कि व्हाट इज ऑर्डिनरी यार। ये कि जो चीजों को हम फालतू मानते हैं, जिन कहानियों को हम फालतू मानते हैं, जिन कहानियों को हम एकदम साइड कर देते हैं, ये कहाँ, ये तो मोहन राकेश ने नहीं लिखी, तो ये तो इम्पोर्टेंट कहानी होगी नहीं। It gives value to ordinary things, ordinary objects, ordinary people, ordinary stories. I love that. मेरी सारे नाटक is only about ordinary people. I love ordinary things. I love ordinary people, I guess. I don't know. This is what is attractive for me. So ordinary is not so ordinary, and that's the thing which makes it special. Moving on, now I would like to welcome and invite our director and founder of Summer Theatre Group to give vote of thanks. Sir, can we have sir on our digital stage? Thank you so much, Ankit, and thank you so much, दीदी। आज की इस शाम में हम सबको ऑब्जेक्ट थिएटर के बारे में बताने के लिए मैं अभी जब आपने कॉल किया तो मेरा ध्यान फिर से फोन पर गया कि शायद मेरा ऑब्जेक्ट थिएटर के साथ पहला एनकाउंटर दीदी के एक नाटक के साथ हुआ था, और अभी भी मैंने चोइती दीदी के आगे एलिस इन वंडरलैंड लिखा हुआ है, तो वो मेरी मेमोरी फिर से क्लिक कर गई। एलिस इन वंडरलैंड जो आपका एक नाटक था 2012 तिफली में देखा था तुम, तिफली में देखा रहेगा हैं 2012, यस 2012। नॉट पॉसिबल, वो नाटक बना ही था 2013 में। झूठ मत बोल संदीप। शायद मैंने 13 में देखा होगा। So, आप शायद भूल रहे, उसके लिए पानी मैंने भरे थे, पानी के टैंकर्स, याद कीजिए, आपको याद आएगा मॉर्निंग में। पानी के टैंकर्स टिफली में। हाँ। ऑब्जेक्ट थिएटर के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टर्स, क्योंकि आपके कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी देखे हैं बर्ड्स आई व्यू के, जब हम ऑब्जेक्ट थिएटर में बात करते हैं कि, बिकॉज मैंने शायद आपसे शेयर भी किया था कि वो ट्रेलर अपने आप में बड़ा खूबसूरत ट्रेलर है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स ओपन करता है। कई दफा एक्टर्स को शायद ये लगता है कि ऑब्जेक्ट थिएटर के अंदर, क्योंकि हम शायद उस एक्टर, हम इस वक्त जितने एक्टर से बात कर रहे हो कहीं ना कहीं अभिनेता बनना चाहते हैं, और इसके अंदर कहीं ना कहीं कभी हमें लगता है कि शायद मैं पीछे तो नहीं हो जाऊंगा, कि मेरा ऑब्जेक्ट तो आगे नहीं हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना एक अच्छा अभिनेता बनने में मदद करता है। ये मैंने पिछले
शायद इस एक दशक के अंदर जो मैं ऑब्जेक्ट थिएटर या इन 7-8 सालों में जो मैंने ऑब्जेक्ट थिएटर को देखा, बहुत हेल्प करता है। शायद आप एक सबसे खूबसूरत चीज जो आपका एक छोटा सा प्रॉप है जो आप शायद इस्तेमाल करने जा रहे हो, एक छाता जो इस्तेमाल करने जा रहे हो, आपको शायद उसको देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है कि ये शायद मेरे सीन में किस तरह मेरी मदद कर रहा है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट थिएटर का। एंड मुझे लगता है कि हम शायद उन रेयर पर्सनालिटीज में से देख रहे हैं जिन्होंने जो ऑब्जेक्ट थिएटर प्रैक्टिस कर रही हैं। साथ में एक नाम भी मुझे याद है, ऑब्जेक्टियर, एक नाम दीदी ने एक बार सजेस्ट किया था, हमने अपना नाम खुद रखा है, वी आर ऑब्जेक्टियर्स। सो इसी शाम के साथ कुछ वोट ऑफ थैंक्स और देना चाहूंगा मैं। एक टेक्निकल टीम है जो इस पूरे वेबिनार में पीछे लगी हुई है। सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अंकित को, जो अंकित होस्ट थे। एक बार डिजिटल तालियों के साथ अंकित, वेलकम ऑन दिस डिजिटल स्टेज। ध्रुवी, जोरदार तालियां ध्रुवी के लिए। अंकित कुमार, सॉरी अरुण सिंह एंड स्पीति के लिए भी हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं। अंत में यही कहूंगा, ये जो ऑर्डिनरी वाला जो जगह बहुत अच्छे नोट पे हमने खत्म किया कि कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है, बस हमें आसपास के अपने पर्सपेक्टिव को बदलने की जरूरत है। सब कुछ भी ऑर्डिनरी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं होस्ट को वापस देना चाहूंगा जिम्मेदारी। अंकित, इस शाम को खत्म कीजिए। अंकित, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thanks a lot. I would like to thank Jyoti ma'am once again to spare some time for us and for sharing such an amazing experience and all the knowledge she shared with us. Moving on, I would like to thank all the participants to be with us, and thank you, Bharat Sikri. Ma'am, he wants to thank you for the lovely session with us. And I would like to request all the participants to do follow our social handles on Instagram and Facebook for much more updates. Thank you, Vishal. Thank you, Shubh. Thank you, Karan. From here, I would like to say goodbye to all of you. Thank you for being with us. Thank you. Bye-bye.